Good morning, students. So, we are learning about chapter number 1, that is Microsoft Office tool. And in last class, we have studied and we have learned about what are different Microsoft Office tools available and different versions for Microsoft Office. And we have learned like examples of Microsoft Office tool, or we have what kind of application we have in Microsoft Office tool. So if you remember, I will do just revision. So in Microsoft Office tools, we are having Word, PowerPoint, Excel, Publisher, OneNote, Outlook. So all these are application of, or you can say software under Microsoft Office tool. So now we will continue with the next topic, and we have done the introduction also in last class, like different softwares available. Hardware we all know, like monitor, CPU, keyboard, mouse, all these are example of hardware. But in system we are having software, so that we can pass some instruction to the computer. Okay, and now today we will learn about software. So I would like to tell you, we are having two type of software available in your computer, or you can say in your system. Okay, so one is your system software and another is your application software. As you can see, so today we are going to learn about system software and application software. So first of all, we will learn about system software, then we will learn about application software. So if we will move to the book part, you can see here in system software we are having two kind of software. Okay, so I will just open that one so that we can have a better idea. So this is your system software. Give me 1 minute. Okay. So system software is a type of computer program that is used to run a computer hardware and application program. So now you all will get confused, like what is the meaning of this line. So as I have told you, we are having hardware. So the hardware which we can touch, we can feel, but software is an internal part. But जैसे कि एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? हार्डवेयर को आपने टच किया, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी कीबोर्ड से, जो भी आपने प्रेस किया, वो सॉफ्टवेयर तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपने क्लास 3 में चैप्टर 3 में पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, उबंटू, लिनक्स. तो वो हमारा क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना. सी we can also say that system software consists of program that control or maintain the operation of computer and its device. So if I will tell you, like system software is the important part of your computer. आप कितना भी अच्छा हार्डवेयर ले लो, कोई डिजाइन ले लो, कितना भी फ्लैट ले लो आपका मॉनिटर, लेकिन अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, बिकॉज जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे पहले कौन सी चीज ऑन होती है? ओनली योर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ इफ आई वुड tell you the example of system software, or you can say operating system. So Windows is your example of system software, or we can say operating system. Or almost 90% people, or you can say more than 80% people are using this operating system only. आपके घर में जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपने स्कूल में भी जितनी भी लैब्स देखी हैं, सब में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, now the type of system software, as I have told you, important part is your operating system, another one is your utility programs. As you can see here, types of software. So we are having basically two type of software, whether system software and we are having application software. तो हमने स्टार्टिंग में जितने भी टूल्स पढ़े हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किसके एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. Okay, so you can see here
type of system software, operating system and utility program. So operating system, I have told you, this one is the very important, or you can say without this operating system your computer will not start. Remind this thing, अगर आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका कंप्यूटर टर्न ऑन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें लाइट नहीं आएगी, लाइट आएगी बट स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन आएगी. इट मीन्स उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें विंडोज नहीं है. सो दिस वन इज वेरी important part of your system. Okay, so next we are having utility program. This one is also example of your system software. Okay, so now we will move to the book part and see what we have in detail. Okay, here you can see hardware. So you all know what is the meaning of hardware. CPU, mouse, monitor, keyboard, all these are example of hardware. Then we have system software. System software, operating system and utility. And then एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपके कंप्यूटर में आप जो भी यूज करते हो, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, आपने कितनी भी एप्लीकेशन, आप बोलते हैं ना कि ऐप डाउनलोड करनी है मुझे, तो वो ऐप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आप जो भी डाउनलोड करते हो, यूट्यूब किया, गूगल किया, क्रोम किया, या फिर आपने पावर पॉइंट इंस्टॉल किया, या फिर आपने ऑफिस इंस्टॉल किया, XYZ आप जो भी इंस्टॉल करते हो ना अपने सिस्टम में, वो सारे आपके क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मीन्स आप जैसे कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन के लिए क्या करोगे? पावर पॉइंट इंस्टॉल करोगे. आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट के लिए आप वर्ड डाउनलोड करोगे. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. ओके, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which are used to design to perform a specific task. मीन्स किसी स्पेशल या स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं. देन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन. सो एज आई हैव टोल्ड यू, हार्डवेयर आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते. तो जब आपने हार्डवेयर के थ्रू कमांड दी, आपने कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया, एप्पल लिखा, तो वो एप्पल सॉफ्टवेयर तक कैसे जाएगा जो सिस्टम के अंदर है? उसके लिए हमें चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका इंटरफेस है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग सम फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन. ऐसा नहीं कि इसको बनाना बहुत आसान है, इसको बनाने के लिए बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि आप सारा काम इसी पे बेस्ड होते हैं. पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, it is written in low level language. So now you will get confused what is the meaning of low level language. Just understand this thing कि कंप्यूटर सिर्फ low level language समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो उसमें ये डिजाइन किया जाता है. that's why it's very difficult to design. It is difficult to manipulate. मीन्स अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करना भी बहुत मुश्किल है. देन इट इज वेरी क्लोज टू हार्डवेयर सिस्टम, और यह हार्डवेयर के बहुत क्लोज होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So next we will move to the application software. So I have told you, anything you are downloading in your computer, in your laptop, in your phone is your example of application software. आप कोई भी XYZ गेम डाउनलोड करते हो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या फिर आपने कभी गूगल क्रोम कोई ब्राउजर डाउनलोड किया हो या यूट्यूब डाउनलोड किया हो, मीन्स आप अपना काम करने के लिए जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वो सारी किसके एग्जाम्पल है? एक एप्लीकेशन क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एज यू कैन सी, गेम्स, स्प्रेडशीट जो आपका एक्सेल होता है, और वर्ड प्रोसेसर जो आपका MS वर्ड होता है, ये सारे आपके क्या एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू डिजाइन विद user input and help the user to complete task. It is also called end user program. Now it is programmed for simple as well as complex tasks.
ये डिजाइन किए जाते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल काम, क्योंकि काम तो आसान भी होते हैं मुश्किल भी होते हैं, कंप्यूटर में भी आसान काम भी है मुश्किल काम भी है, तो उन दोनों काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, इसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि आप या तो ऑनलाइन ही डायरेक्ट एक्सेस करते हो उसके एप्लीकेशन, जैसे आपकी लोटस वैली ऐप है, आप अपने फ़ोन पे भी यूज़ करते हो या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे आप वेब लिंक डाल के इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको डाउनलोड कर लो या फिर आप उसको डायरेक्टली लिंक के थ्रू एक्सेस कर लो। It can be a single program or group of small program that are referred to एप्लीकेशन कलेक्शन। तो इसमें ऐसा नहीं कि एक ही प्रोग्राम होता है, एक से ज्यादा प्रोग्राम भी हो सकते हैं या फिर सिंगल प्रोग्राम का भी हो सकता है। द एंड यूजर यूजेस एप्लीकेशंस, और एंड यूजर क्या होते हैं? हम अगर कुछ यूज कर रहे हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन को तो हम क्या हो गए? एंड यूजर। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक इज differences between system software and application software. First of all, system software is used for operating hardware of the computer. तो ये आपको बताया मैंने पहले कि आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। Application software is used to perform some specific task. Now, what is the meaning of this line? जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको YouTube पे वीडियो प्ले करना है, तो वीडियो प्ले करना एक काम हुआ और उस काम को आप किस पे कर सकते हो? सिर्फ YouTube पे। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं किसी एक स्पेशल काम को डिजाइन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट, system software is installed on computer by default when operating system is installed। तो जैसे ही आप अपना कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, इट मीन्स आपने उस पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, बट दिस वी हैव टू डाउनलोड और इंस्टॉल। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, तो जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना मैंडेटरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप अपना फोन लेके आते हो, किसी के फोन में कौन सी गेम है, किसी के फोन में कौन सी गेम है, क्योंकि जिसको जिस गेम में इंटरेस्ट आता है बच्चा वही डाउनलोड करता है। तो इसीलिए एंड्रॉयड होना जरूरी है। आपके फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी के पास एप्पल का है तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप नोट डाउन कर लीजिए ये बात, क्योंकि ये बहुत जेनरिक थिंग है, यू मस्ट नो अगर आप लर्न कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो जस्ट मेक अ नोट, लाइक इन फोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड। Okay, in each and every phone we are having operating system Android। अगर आपके पास आईफोन है, आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? iOS। यूजुअली सबके फोन में एंड्रॉयड है, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूजुअली सभी सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज। अगर आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है थर्ड क्लास में तो आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको जस्ट रिवीजन के लिए बता दिया कि सभी सिस्टम में मोस्टली हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? वाइडली विंडोज, फोन में एंड्रॉयड, और जिनके पास आईफोन है उसमें iOS। ये हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम सब में होना मैंडेटरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना आपका फोन चलेगा, ना आपका लैपटॉप चलेगा, ना आपका पीसी वर्क करेगा। एक बार आपके पास फोन आ गया, ये तो एग्जांपल हो गया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ओके, ये सब आपके किसके अंडर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये सब हम अपनी अपनी चॉइस से डाउनलोड करते हैं कि अगर आपको आज टेम्पल रन पसंद आया तो आप टेम्पल रन करोगे। मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है
तो MS वर्ड आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, तो आप MS वर्ड डाउनलोड करोगे। फिर अगर हम एक्सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी MS एक्सेल डाउनलोड करो। फिर मैं आपको पावर पॉइंट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोलूँगी पावर पॉइंट डाउनलोड करो। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़र अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाउनलोड करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होना मैंडेटरी है। जस्ट मेक श्योर दिस थिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, and that has to be download, that must be in there in your phone, laptop and PC, whereas application software you can download according to your preferences or according to your task or work. Okay, so application software, if you are downloading any games or any apps like एक्सेल आपने डाउनलोड किया, या फिर पावर पॉइंट किया, या फिर MS वर्ड किया, सो ये सारे आपके पास क्या है, ऐप के एग्जाम्पल है। जैसे आजकल आप PDF बना रहे हो तो आप PDF स्कैनर डाउनलोड करते हो, या फिर कैम स्कैनर डाउनलोड करते हो, वो भी सारे क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो वी वर ऑन द पॉइंट दिस वन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ये होना मैंडेटरी है, और ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका काम आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करते हो। देन यूजर इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद सिस्टम, इट वर्क्स ऑन द बैकग्राउंड, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उससे इंटरेक्ट नहीं करते, आप बस कमांड देते हो, वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे इंटरेक्शन से चलता है, यूजर इंटरेक्शन से। इट कैन बी इंडिपेंडेंटली रन एज प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, तो ये आपका क्या है, आपने एक बार डाउनलोड कर दिया, फिर इसका काम है ये जाने, हमें इसको कुछ भी नहीं देना, हम जो भी काम करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, और बैकग्राउंड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। और जिसके एग्जाम्पल हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का विंडोज। Okay, so best example of your operating system is, or you can say system software is OS, Android, और iOS, और Linux, Unix, DOS, ये आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अगर आपको कहीं पे ऐसा कुछ लिखे ना S/W, इट मीन्स मैंने क्या लिखा है, ये सॉफ्टवेयर, आपको नेट पे भी कहीं जगह मिलेगा ना ऐसे S/W, तो कंप्यूटर में इसका मतलब है सॉफ्टवेयर। अगर आपको मिले H/W, इट मीन्स हार्डवेयर। ओके, और फिर मिलता है आपको OS, डायरेक्टली OS। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो। इज इट क्लियर? अगर किसी को कुछ डाउट है, जस्ट लेट मी नो, एंड what you have to do, you have to make a note of this short form also, so that if somewhere I am using S/W, so you must get idea like this is this means software. Okay students, so now we are going to end this meeting and this class, and if you have any doubt then let me know, we will discuss that topic again. Till then, take care students, bye bye.